धन्य सम्मेलन के इस आखिरी दिन में भी एक बार फिर हम परमेश्वर के धन्य नाम में आपको अभिनंदन करते हैं। We are grateful to God from the depth of our heart who did everything good for us till now, till thus far. हम अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अभी तक हमारे लिए सब कुछ भलाई में होकर बदल दिया। We are least worthy for all His blessings, but it is purely the grace of God and His faithfulness towards us. यद्यपि हम परमेश्वर की सारी भलाइयों के लिए योग्य नहीं है, लेकिन फिर परमेश्वर की ये दया और अनुग्रह है जो हमें वो आशीष करता है। And we are seated in His holy presence to hear the sweet voice of God. आज हम परमेश्वर के सम्मुख में इसलिए बैठे हैं ताकि हम उसकी मधुर आवाज को सुन सकें। Shall we all pray so that God may speak to us according to our needs and also help us to grow in our spiritual life through His holy word? Shall we all pray? उसके पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर हमारी आवश्यकता के अनुसार हमसे बातें करना चाहिए और साथ ही साथ उस वचन के अनुसार हमें बढ़ने के लिए भी प्रभु मदद करना चाहिए। आज उसके वचन के द्वारा हमसे बातें करने के लिए आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। Gracious Lord, we do humble ourselves, my Savior Lord. Oh Lord Jesus, we are looking unto Thee from where the word of God comes. Oh Master, speak to us according to our needs. We are nothing, Lord, we are dust and ash. We want to hear Thy sweet voice, so that Thy voice may, Lord, strengthen us, Lord, quicken us, Lord, revive us, O Lord, Savior, and help us to grow in our, Lord, spiritual life, in order to meet Thee when Thou shalt appear in the mid-sky, O Lord. Open our eyes of understanding, open our heart to accept Thy word into our hearts, my Lord Jesus. Thank You for all the blessings thus far, and we committing ourselves and this meeting entirely in Thy mighty hand, O God. Undertake and bless it and glorify the name. We do ask this prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Shall we open our Bibles to the book of Psalm and reading Psalm 27 verse 4. आइए हमारे धर्म शास्त्र को हम भजन संहिता उसके 27 अध्याय उसके 4 वचन की ओर खोलें। Yes. Psalm 27 reading verse 4. भजन संहिता 27 का उसका 4 वचन पढ़ें। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Glory to God. प्रभु की महिमा हो। These words were spoken by King David. ये जो वचन हैं राजा दाऊद के द्वारा कहे गए हैं। Mostly we call this book the book of David. अधिकतर इस भजन संहिता को हम दाऊद की पुस्तक करके कहते हैं। We see in this book there are 150 psalms and most of the psalms are composed by King David. हम इस पुस्तक में 150 संगीतों को या भजनों को देखते हैं और उसमें से अधिकांश दाऊद ने ही बनाए हैं। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Other people of God also there who composed the song in this book. और भी परमेश्वर के लोगों ने इस पुस्तक में कई गीतों को लिखा है। But mostly we call it the Psalms of David. लेकिन अधिकांश हम ये दाऊद के भजनों को करके कहते हैं। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। And his voice was so sweet that he sang in such a way whereby he could immerse in God and see God in His Spirit and rejoiced in His presence. उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जब वो गीत गाता था तो वो परमेश्वर में मगन हो जाता था और उसकी आवाज प्रभु की आवाज को अपनी आवाज के द्वारा परमेश्वर को मोहित करता था। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Here he has shown his desire. यहाँ उसने अपना एक आग्रह लिखा है। He has told what was his desire. वहाँ इस जगह में वो अपने एक आग्रह को लिखता है। He said, "One thing have I desired of the Lord." वो ये कहता है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। That will I seek after. और उसी का यत्न में लगा रहूंगा। That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। See his good desire of David. यहाँ दाऊद के एक अच्छे आग्रह को देखिए। He was a king.
राजा दाऊद, he was a king, वो एक राजा था, he had palace, उसके पास बड़ा महल था all the facilities were there, और सारे प्रकार की सुविधाएं थी, so many servants, बहुत से दास थे nothing was lacking there. और उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं थी। But what was his desire? लेकिन उसका आग्रह क्या था? All these things which he had in plenty, still he was not satisfied with all these things. यद्यपि उसके जीवन में ये सारी बातें भरपूरी से थी, लेकिन इन सारी बातों से वो तृप्त नहीं था। That's why he found the way how he can dwell in the house of the Lord. इसलिए वो इस ऐसे एक मार्ग को खोजता है कि जिसके द्वारा वो परमेश्वर के भवन में वास कर पाए। So he said that I will seek after the way how to dwell in the house of the Lord. वो ये कहते हैं कि मैं एक ऐसा मार्ग को ढूंढूंगा कि जिसके द्वारा मैं परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं। I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। When he say all the days of my life mean forever. जब हम ये कहते हैं कि जीवन भर, उसका अर्थ ये है कि हमेशा तक। This is what King David said, Psalm 23 and verse 6. यही बात वो भजन संहिता 23 के 6 वचन में कहता है। Read that verse. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। I will dwell in the house of the Lord all forever. मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। So here he said, all the days of my life, Psalm 27 and verse 4. यहाँ भजन संहिता 27 के 4 वचन में वो कहता है कि जीवन भर प्रभु के भवन में। But here, Psalm 23 and verse 6, I will dwell in the house of the Lord forever. लेकिन भजन संहिता 23 के 6 वचन में वो ये कहते हैं कि मैं सर्वदा परमेश्वर के भवन में वास करूंगा। So what it shows, वो ये क्या दिखाता है? that mean our living upon this earth, it is not forever. हमारा इस पृथ्वी के ऊपर जो जीवन काल है वो हमेशा का नहीं। One day we have to leave, say goodbye to this world and go to our eternal abode. एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ के हमें अपने नित्य भवन में जाना है। Therefore, we should always have such a desire as King David had. इसलिए हमारे जीवन में भी जैसा राजा दाऊद के आग्रह था, ऐसे आग्रह हमारे जीवन में होना He चाहिए। said, I want to dwell in the house of the Lord forever. वो ये कहता है कि मैं परमेश्वर के भवन में सर्वदा वास करना चाहता हूँ। We have read the desire of King David here, यहाँ हमने राजा दाऊद के आग्रह को पढ़ा है, but what is our desire? लेकिन हमारा आग्रह क्या है? What is our desire? हमारा आग्रह क्या है? We should also know what is our desire. और हमें भी ये जानना चाहिए कि हमारा आग्रह क्या है। When we look about the world, जब हम इस दुनिया में देखते हैं, when we look around the world, जब इस दुनिया में हम देखते हैं, people having different kinds of desires into their hearts. उनके लोगों के हृदय में कई प्रकार के आग्रह पाए जाते हैं। Some people want to become great into this world. Their desire is to become great into this world. कई लोगों का आग्रह ये है कि वो इस संसार में बड़े महान होना चाहते They हैं। want to get name, fame and prosperity into this world. That is their desire. लोगों का ये आग्रह है कि वो इस संसार में रहते हुए बड़ा नाम, प्रसिद्धि और समृद्धि पाना चाहते हैं। Their desire is that let the whole world know that I am something. उनका ये आग्रह है कि पूरा संसार ये जाने कि वो कुछ है। But dear brother and sister, all this prosperity, name and fame, the day we will close our eyes upon this earth, it will left behind. It will not follow us. लेकिन परमेश्वर के प्यारे बच्चों, ये जो नाम, प्रसिद्धि और समृद्धि हमने इस संसार में पाया है, जिस दिन हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, ये सब कुछ इसी संसार में छोड़ के जाना पड़ेगा। Yes, the day we will close our eyes upon this earth, understand all our name, our greatness, our fame, our prosperity, all our riches, and all everything which we have in this world, it will not follow us. We have to leave it here itself. ये जान ले कि जिस दिन इस पृथ्वी के ऊपर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, तो जो नाम हमने कमाया है, जो महानता हमने पाई है, जो समृद्धि हमने पाई है, जो प्रसिद्धि हमने पाई है, जो धन दौलत हमने कमाया है, सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। कुछ भी हमारे साथ नहीं आएगा। Therefore, we should make a wise choice before we leave this world. इसलिए इस संसार को छोड़ने से पहले एक ठीक संकल्प हमें लेना होगा। Choice, चुन करना चाहिए. हमें ठीक चुनावट करनी होगी। Yes, we should make a wise choice before we leave this world. इस दुनिया को छोड़ने से पहले एक ठीक फैसला हमें करना होगा। And this is what I would like to tell you from the word of God. यही आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताना चाहूंगा। I would like to tell you from the word of God based upon this our key verse. इस मूल वचन के आधार
पे मैं आपको परमेश्वर के वचन से ये बातें बताना चाहूंगा। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Here, come back to our key verse once again. एक बार फिर हमारे मूल वचन में वापस आएंगे। So let us see the desire of King David. यहाँ राजा दाऊद के आग्रह को हम देखेंगे। He said that I may behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. जिससे मैं यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। What was his desire? उसका आग्रह क्या था? To see the beauty of the Lord. परमेश्वर की सुंदरता को देखना। What should be our desire? हमारा आग्रह क्या होना The चाहिए? same desire should we all have to see the beauty of the Lord. हमारे जीवन में भी यही आग्रह होना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की सुंदरता को देखें। What is the beauty of the Lord? परमेश्वर की सुंदरता क्या है? What beauty stands for? ये सुंदरता क्या कहलाती है? Beauty means character of God. ये जो सुंदरता है ये परमेश्वर के स्वभावों को दिखाता है। Here I may behold the beauty of the Lord. It shows looking or beholding the character, beautiful character of our God. जब दाऊद ये कहता है कि परमेश्वर की सुंदरता को निहारूंगा, उसका अर्थ ये है कि परमेश्वर के दिव्य स्वभावों की सुंदरता को निहारना। Let's see that verse. उस वचन को हम पढ़ेंगे। Psalm 29 verse 2. भजन संहिता 29 का 2 वचन। Psalm 29 verse 2. There we can see that the beauty of the Lord. भजन संहिता 29 के 2 वचन में हम परमेश्वर की सुंदरता को देख सकते हैं। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Give unto the Lord the glory due unto his name. जो महिमा परमेश्वर के नाम के लिए है उसे देना। Worship the Lord in the beauty of holiness. पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। So here we have read what is the beauty of the Lord. यहाँ हमने ये पढ़ा कि परमेश्वर की सुंदरता क्या है। What is the beauty of the Lord? परमेश्वर की सुंदरता क्या है? Here we read his holiness. हम यहाँ पढ़ते हैं कि वो उसकी पवित्रता है। Holiness is the beauty of the Lord. पवित्रता परमेश्वर की सुंदरता है। So we must have desire to behold the beauty of the Lord or to behold his character which is his holiness. इसलिए हमें भी परमेश्वर की सुंदरता को निहारने का एक आग्रह होना चाहिए जो उसकी पवित्रता है। Not only that, उतना ही नहीं, when we read Psalm 90, जब हम भजन संहिता 90 पढ़ते हैं and the last verse 17 when we read, जब उसका आखिरी वचन जो 17 वचन है, yes, Psalm 90 and let's read verse 17. भजन संहिता 90 का 17 वचन हम पढ़ेंगे। Yes. और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Here we see again the man of God, Moses, he prayed here and let the beauty of the Lord our God be upon us. यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का जन जो मूसा है वो इस रीति से प्रार्थना करता है कि हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। This Psalm 90 is the prayer of Moses, the man of God. ये जो भजन संहिता 90 है ये परमेश्वर का जन मूसा की प्रार्थना है। And what was his prayer? उसका प्रार्थना क्या है? Let the beauty of the Lord our God be upon us. हमारे परमेश्वर की मनोहरता या सुंदरता हम पर प्रकट हो। What should be our prayer? हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? Lord, give me grace that I may abound into thy character. परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं तेरे स्वभाव में बढ़ूं, I may abound in thy beauty. तेरी सुंदरता में मैं बढ़ूं। Let thy beauty be seen upon my face. तेरी सुंदरता मेरे चेहरे के ऊपर प्रकाशित हो। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Therefore, dear brothers and sisters, इसलिए प्यारे भाई और बहनों, what should be our desire? हमारा आग्रह क्या होना चाहिए? Our desire should be, Lord, let thy face be, the beauty of thy face be upon us. हमारा आग्रह ये होना चाहिए कि प्रभु तेरे चेहरे के सुंदरता हमारे ऊपर प्रकाशित हो। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। When we read about our Jesus, जब हम हमारे यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, Song of Solomon chapter 2 and verse 1, श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय का 10 वचन, 1. पहला वचन, पहला, श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय का पहला वचन। Song of Solomon chapter 2 and verse 1 when we read, जब हम श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय का उसका पहला वचन पढ़ते हैं, what we read there? वहाँ हम क्या पढ़ते हैं? पढ़िए. मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूँ। I am the rose of Sharon. मैं शारोन का गुलाब हूँ। Here Jesus said, I am the rose of Sharon.
यीशु यहाँ ये कहते हैं कि मैं शारोन का गुलाब हूँ। We see in rose flower two unique quality. जब हम गुलाब के फूल को देखते हैं तो उसमें अद्वितीय गुणों को हम देखते हैं। See two unique quality. उसके बीच में दो अद्वितीय गुणों को देखते हैं। तो What are these two unique qualities we see in a rose? वो दो अद्वितीय गुण क्या हैं जो हम गुलाब में देखते हैं? We see in that rose beauty and fragrance. उस गुलाब के बीच में हम दो बातों को देखते हैं। पहला है उसकी Beauty. सुगंध और दूसरा उसकी सुंदरता। First is beauty, then fragrance. पहला उसका सुंदरता और दूसरा उसका सुगंध। There are so many varieties of flowers we see in this world. इस संसार में हम भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों को देखते हैं। It is said like that in the rose there are 150 varieties. ऐसा कहा 150, 150. ऐसा कहा जाता है कि जो गुलाब का फूल है उसमें 150 प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। So we see here that Jesus' life is compared with a rose. और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जीवन उस गुलाब के साथ तुलना किया गया Jesus है। said, "I am the rose of Sharon." उसने ये कहा कि मैं शारोन का गुलाब What हूँ। is the meaning of Sharon? ये शारोन का अर्थ क्या है? Sharon means the plain place. जो शारोन का अर्थ है तराई या Plain place. Plain मैदान। place. Glory, yes. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So when we say the plain place mean we can compare with the whole world. जब हम समतल भूमि को या मैदान को देखते हैं तो इस संसार के साथ तुलना करते हैं। So that means Jesus' life is for the whole world is full of beauty and fragrance. उसका अर्थ ये है कि जो यीशु मसीह का जीवन है इस पूरी दुनिया के लिए सुंदरता से और सुगंध से भरा हुआ है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। And we will see the beauty and the fragrance of Jesus from the Word of God. और हम परमेश्वर के वचन से यीशु मसीह की सुंदरता और उसके सुगंध के बारे में पढ़ेंगे। So therefore, dear brother and sister, as Jesus said, I am the rose of Sharon. इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जैसे यीशु ने कहा कि मैं शारोन का गुलाब हूँ, In the same way, we who are His body, spiritual body of Jesus Christ, उसी तरह हम जो यीशु मसीह की आत्मिक देह हैं, we should also become like a rose. हम भी उस गुलाब के समान बनना We चाहिए। should live like a rose. हमें उस गुलाब के समान जीना चाहिए। We see in the rose beauty and fragrance. हम उस गुलाब के बीच में सुंदरता और सुगंध को देखते हैं। Where we see about these two things about Jesus, कहाँ हम यीशु मसीह के बारे में इन दो बातों को देखते हैं? when we read in Ephesians chapter 5. जब हम लोग इफिसियों 5 अध्याय में पढ़ते हैं, Ephesians chapter 5 and verse 2 when we read. जब हम इफिसियों 5 अध्याय का 2 वचन पढ़ते हैं, Please read the verse. दया करके उस वचन को पढ़ें। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Here it is written, walk in love as Christ also hath loved us and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for his sweet smelling aroma or savor or fragrance. और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। What type of beauty we see in Jesus who said, I am the rose of Sharon? यीशु जो कहते हैं कि मैं शारोन का गुलाब हूँ, किस प्रकार की सुंदरता हम उनमें पाते हैं? Beauty of his love. उसके प्रेम की सुंदरता। Yes, Jesus is beautiful in his love. यीशु मसीह अपने प्रेम में सुंदर है। There is no such love we can see anywhere in the world, any part of the world. इस संसार में या संसार के कोई भी हिस्से में हम ऐसे प्रेम को कहीं नहीं देख सकते। Such love we cannot see among any person, those who are living all over the world. और ऐसा प्रेम हम किसी भी मनुष्य में जो इस पृथ्वी के ऊपर जीते हैं नहीं पा सकते। That's why we see Jesus' love is extraordinary love. इसलिए जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो प्यार है वो असाधारण प्यार है। His beauty is, we cannot compare with others. और उसकी जो सुंदरता है हम दूसरों के साथ तुलना नहीं कर सकते। Generally we see in this world the people, they will love them by whom they are loved.
साधारण रीति से हम देखते हैं कि इस संसार में लोग उन्हीं को प्यार करते हैं जो उनको प्यार करते हैं। They will only help them by whom they are helped. वो उन्हीं की सहायता करते हैं जिनके द्वारा उनकी सहायता की गई। They will only do something good to them from whom they got goodness in their lives. वो केवल उन्हीं को भलाई करते हैं जिनके द्वारा उन्होंने भलाई पाई है। But see the beautiful or the beauty of our Jesus, which His love. Romans chapter 5 verse 8. रोमियो 5 अध्याय का 8 वचन के अनुसार हम यीशु मसीह की सुंदरता को, जो उसकी प्रेम की सुंदरता है, हम देखते हैं। Romans 5:8. रोमियो 5 अध्याय का 8 वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। See the beauty of our Jesus. देखिए यीशु मसीह की सुंदरता। See the beauty of His love of our Jesus here. यहाँ हमारे यीशु मसीह की प्रेम की सुंदरता को देखिए। What is that? वो क्या है? But God commendeth His love towards us in that परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, while we were yet sinners, Christ died for us. जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। So this is the beauty of our Lord Jesus Christ. इसलिए ये यीशु मसीह की सुंदरता है, Beauty of His love. उसके प्रेम की सुंदरता। While we were yet sinners, Christ died for us. जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। What it shows? ये क्या दिखाता है? He loved the sinner. उसने पापियों से प्रेम किया। He did not love sin, वो पाप से तो प्रेम नहीं करता, but He loved sinners. लेकिन वो पापियों से प्रेम करता है। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Therefore, dear brothers and sisters, इसलिए प्यारे भाई और we बहनों, should always remember about Rose and his beauty, whose life is compared with Jesus. इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना है कि जो गुलाब है जिसकी सुंदरता और सुगंध यीशु मसीह के साथ तुलना की गई है। And we see the second thing, the fragrance. और दूसरा विषय हम देखते हैं उसकी सुगंध। Jesus said, I am the rose of Sharon. यीशु ने कहा कि मैं शारोन का गुलाब हूँ। First we showed his beauty by showing his love. पहला उसने अपनी सुंदरता इस रीति से अपने प्रेम को दिखा के दिखाई। And the second thing we see in the same rose flower, the fragrance. और दूसरा विषय हम उस गुलाब के बीच में सुगंध को देखते हैं। What is the meaning of fragrance? ये सुगंध किसे दिखाती है? You know, the fragrance only attract the people. क्या आप जानते हैं कि जो ये सुगंध है यही लोगों को आकर्षित करती है? Hallelujah. Fragrance only attract the people. ये जो सुगंध है यही लोगों को खींचती है। Beauty is there, it is true. ये तो सच है कि वहाँ सुंदरता तो है। हाँ, but in the same time, see, when the people apply the cream or ointment upon their face, or sometime they will, what do you say, spray some perfume upon their body or upon their garment, it will give the fragrance. सुंदरता तो ठीक है, लेकिन कई बार जब लोगों को जब हम देखते हैं कि वो जब अपने चेहरे पे कुछ क्रीम को लगाते हैं या अपने वस्त्रों पर कुछ इत्र को लगाते हैं या अपने शरीर पे कुछ इत्र को लगाते हैं तो उस सुगंध से दूसरे लोग आकर्षित होते हैं। That fragrance only attract the people. और वो सुगंध जो है दूसरों को आकर्षित करती है। I will give you one example. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। See this honeybee. एक मधुमक्खी को देखें। This rose will not approach to the honeybee, but honeybee itself, it will come to the rose. ये जो गुलाब है वो मधुमक्खी के पास नहीं जाता, लेकिन मधुमक्खी उसकी ओर खींची चली जाती है। Rose plant may be somewhere in the corner or some far place, but the honeybee will be somewhere else, but it will be attracted by the fragrance and flee towards that side. ये जो गुलाब है ये तो किसी कोने में रहता है या दूर रहता है, लेकिन ये जो मधुमक्खी है उस गुलाब की सुगंध से खींची और चली जाती है। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। In the same way, dear brother and sister, उसी प्रकार से प्यारे भाई और बहनों, our fragrance of the love of Christ in us should be so powerful that the people, the sinner, or those who are far from God and also having vast distance, it should come us. प्रभु के प्रेम की सुगंध हमारे जीवन में इतनी अधिक होनी चाहिए कि जो कोई पापी उस सुगंध को देखे या सूंघे वो हमारी ओर चले आना चाहिए। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। This is what Saint Paul said. यही संत पौलुस कहता है। Yes, when we read in
First, the 2 Corinthians chapter 2, जब हम दूसरा क्रंथियों दूसरा अध्याय verse 14 and 15 when we read. जब हम 14 और 15 वचन पढ़ते हैं, 2 Corinthians chapter 2, verses 14 and 15. जब हम दूसरा क्रंथियों 2 अध्याय का 14 और 15 वचन पढ़ते हैं, Yes. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध है। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Take your Bible into your hands. अपने धर्मशास्त्रों को अपने हाथों में लें। Open your Bible to the 2 Corinthians chapter 2. अपनी बाइबल को दूसरा क्रंथियों 2 अध्याय की ओर खोलें। Focus your eyes upon verses 14 and 15. उस 14 और 15 वचन के ऊपर अपनी आंखें लगाएं। Now we are going to explain it. अभी हम उसको विवरण देंगे। I will explain to you. मैं आपको उसका विवरण दूंगा। Now Saint Paul said, संत पौलुस क्या कहते हैं? Now thanks be unto God which always causeth us to triumph in Christ. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, And maketh manifest the savor of his knowledge by us in every place. और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह में फैलाता है। Savor of his knowledge by us. सुगंध, उसके सुगंध रूपी ज्ञान हमारे द्वारा। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। That's why in 2 Peter chapter 3 and verse 18 it is written, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. इसलिए दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 18 वचन में लिखा है कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। And in verse 15, 2 Corinthians chapter 2 verse 15, और दूसरा क्रंथियों दूसरा अध्याय का 15 वचन, he said, for we are unto God a sweet savor of Christ in them that are saved and in them that perish. और क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। When we read 1 Thessalonians chapter 4, जब हम पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय पढ़ते हैं, verse 9, please read. 9. 9 वचन जब हम पढ़ते हैं, 1 Thessalonians chapter 4 verse 9. पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 9 वचन, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में ये आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। So first we saw the beauty of Jesus, which is his love, पहला हमने यीशु मसीह की सुंदरता जो उसका प्रेम है उसके बारे में देखा, and in that beauty there is a fragrance. और उस सुंदरता के बीच में एक सुगंध है। That means there is a attraction. उसका अर्थ यह है कि वो उसके अंदर आकर्षण है, Attraction the people towards Jesus. वो लोगों को यीशु की ओर खींचने का आकर्षण। Sometimes some people they will attract the people towards them instead of towards bring the attraction unto Christ. कई बार कई लोग लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ना कि यीशु मसीह की ओर। So we should only attract the people not towards ourselves but towards Jesus. इसलिए हमें लोगों को अपनी ओर नहीं यीशु की ओर आकर्षित करना चाहिए। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Then we will have a great reward from Jesus. तभी यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल होगा। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So we should live like a rose, as Jesus said, I am the rose of the Sharon. इसलिए जैसा यीशु मसीह ने कहा कि मैं शारोन का गुलाब हूँ, हमें भी उस गुलाब के समान जीना चाहिए। So dear brothers and sisters, इसलिए प्यारे भाई और बहनों, now we shall see what is the beauty of our Lord Savior Jesus Christ. अभी हम ये देखेंगे कि हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की सुंदरता क्या है। Sevenfold beauties of Jesus Christ I want to tell you in this morning in this meeting. इस सभा में आज सुबह के समय मैं आपको यीशु मसीह की 7 गुना सुंदरता को बताना चाहता हूँ। Because King David said, I want to behold the beauty of the Lord. क्योंकि राजा दाऊद ने कहा कि मैं प्रभु की सुंदरता को निहारना चाहता हूँ। When we will have the beauty of the Lord, who is Jesus, then only we can dwell with him into that house which he has gone to prepare for us. जब हम परमेश्वर की सुंदरता जो यीशु है उसे निहारेंगे, तभी हम उस भवन में वास करने पाएंगे जो यीशु हमारे लिए तैयार करने के लिए गए हैं। Because David said, I will behold the beauty of the Lord in his temple. इसलिए दाऊद ये कहता है कि परमेश्वर के भवन में रहते हुए मैं उसकी सुंदरता को निहारूंगा। So brother and sister, when we will
imbibe all the beauty of Jesus Christ, beauties of Jesus Christ, which speaks about His character, it will help us to be abide with Jesus in His house. जब हम यीशु मसीह की सारे सुंदरता को जो उसके स्वभावों को दिखाता है हमारे जीवन में लागू करेंगे या हमारे जीवन में लेके आएंगे, तब यीशु मसीह जो हमारे लिए भवन तैयार कर रहा है उसमें हम उसके साथ रहने पाएंगे। We all know in John the Gospel chapter 14 and verses 1 to 3 it is written there, Jesus said, हम पहले से ही जानते हैं कि यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय के पहले 3 वचनों में कहा, let not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। Read those verses. पढ़ियो वचन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Jesus said, John the Gospel chapter 14 verses 1 to 3. यीशु मसीह ने यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय के पहले 3 वचन में ये कहा, Let not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। You believe in God, believe in me also. तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास In करो। my Father's house there are so many mansions. मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं। If it were not so, I would have told you. यदि ऐसा ना होता तो मैं तुमसे कह देता, But I go to prepare a place for you. पर मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूँ। When that place will be prepared, I will come back and take you there where I am. और जब वो स्थान तैयार हो जाएगा तो मैं आकर तुम्हें वहाँ उस स्थान में ले जाऊंगा। King David had desire to go to that place. राजा दाऊद को उस स्थान में जाने के एक आग्रह था। He had desire to go to the house of God. उसे परमेश्वर के भवन में जाने के एक आग्रह था। Glory be to प्रभु God. की महिमा हो। But the place where Christ is taking to the New Testament church, David cannot go there. लेकिन नए नियम की कलीसिया को जिस स्थान में यीशु लेके जाना चाहते हैं वहां राजा दाऊद नहीं जा सकता। Though we see extraordinary qualities in the Old Testament saints than the New Testament saints, नए नियम के संतों से या लोगों से बढ़ के हम पुराने नियम के संतों में असाधारण गुणों को पाने से भी या देखने से भी, when we see the qualities of Abraham and examine his life, such qualities New Testament people or the believer or sometimes the servants of God, they don't have such qualities which Abraham had. जब अब्राहम के जीवन को हम जानते हैं या टटोल के देखते हैं तो उसके जीवन में पाए जाने वाले गुण नए नियम के संतों के बीच में या लोगों के बीच में नहीं पाए जाते। See the life of Daniel. दानियल के जीवन को देखिए। See the life of Joseph. यूसुफ के जीवन को देखिए। See the life of Jacob. याकूब के जीवन को देखिए। Old Testament saints, how they lived a higher standard life. पुराने नियम के लोगों ने या संतों ने किस प्रकार के ऊंचे दर्जे के जीवन को बिताया। No Holy Spirit for them. उनके पास कोई पवित्र आत्मा नहीं थी। But when we examine our lives, लेकिन जब हम अपने जीवन को जांच के देखते we हैं are still far from their spiritual standard. उनके आत्मिक दर्जे से हम कई कोसों दूर हैं। But because our Jesus Christ, He shed His blood for the New Testament church, as Ephesians 5:25 it is written, He loved the church and He gave Himself for it. इफिसियों 5 अध्याय का 25 वचन के अनुसार जिस प्रकार यीशु मसीह ने नए नियम की कलीसिया के लिए अपने लहू को बहाया, हम करके पढ़ते हैं। That's why our value is more than the Old Testament saints. That's why Jesus said, I go to prepare a place for you. इसलिए उस लहू के द्वारा पुराने नियम के संतों से बढ़ के हमारा मूल्य ज्यादा है। इसलिए यीशु कहता है कि मैं जाके तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करता हूँ। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Therefore, dear brothers and sisters, इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, we should we should see the beauty of our Jesus manifold ways and practice in our life, so that we may get ready to that place where Jesus has gone to prepare for us. As we all know, it is New Jerusalem and Zion. इसलिए यीशु मसीह की जो सुंदरता है, जो कई बागों से हम देखने वाले हैं, उन सारी सुंदरता को हमारे जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि यीशु मसीह जो हमारे लिए स्थान तैयार करने के लिए गया है, उस स्थान में हम उसके साथ रहने पाएं। What is the character of our Jesus? Number one. हमारे यीशु मसीह का स्वभाव क्या है? पहला विषय। When I say the character, please take this character
the beauty of Jesus. जब हम स्वभाव के बारे में कहते हैं तो दया करके इस स्वभाव को यीशु की सुंदरता करके ले। Because we have read here, David told, I want to behold the beauty of the Lord. क्योंकि हमने इस जगह में पढ़ा कि राजा दाऊद ये कहता है कि मैं यीशु परमेश्वर की सुंदरता को निहारना So चाहता the हूँ। beauty mean, I have told you, beauty mean the character of the Lord. इसलिए मैंने आपको ये बताया कि जो ये सुंदरता है प्रभु के स्वभाव को So दिखाता when है। I say, let us see the character of the Lord Jesus Christ, that mean I am telling that let us see the beauty of the Lord. इसलिए जब मैं आपको ये कहता हूँ कि आइए हम परमेश्वर के स्वभाव को देखें, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आइए हम परमेश्वर की सुंदरता को देखें। So let us go step by step and see what from different angle the beauty of our Lord and Savior Jesus Christ. इसलिए एक एक कदम करते हम ये देखेंगे कि यीशु मसीह की सुंदरता या उसके स्वभाव क्या है। Number one, पहला, as already we have read about Jesus, that is the rose of Sharon, जैसा कि हमने पहले ही यीशु मसीह के बारे में पढ़ा कि वो शारोन का गुलाब है, is full of beauty and fragrance. वो सुंदरता से और सुगंध से भरा हुआ And है। this beauty and fragrance of Jesus we can see in His love. और ये जो सुंदरता और उसका सुगंध है वो उसके प्रेम में पाई जाती है। And this is what I have already told you the verse again. Now you can write this verse again because we are taking the first beauty of Jesus Christ, which is the love. पहले भी मैं आपको ये वचन बोल चुका हूँ और फिर भी अभी उस पहले स्वभाव के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं उस वचन को वापस आप लिख ले। Ephesians 5:2. इफिसियों 5 अध्याय का 2 वचन। Yes. और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Walk in love as Christ also loved. प्रेम में चलो As Christ also walked in love. प्रेम में चलो जैसा मसीह भी प्रेम में चले। And He became a fragrance for us. और हमारे लिए वो सुगंध हो गए। Love demands sacrifice. ये जो प्रेम है ये बलिदान को चाहता है। Yes, brother and sister, love demands sacrifice. हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो प्रेम है ये बलिदान को चाहता है। Greater love demands greater sacrifice. जो बड़ा महान प्रेम है वो बड़े महान बलिदान को चाहता है। That's why in the Gospel of St. John it is written, there is no greater love that one should give his life for his people, for his friends. इसलिए यूहन्ना सुसमाचार में ये लिखा कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण को दे। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Jesus Christ, in Jesus we see the great love, and He paid for that, He paid great price for that great love, great sacrifice on the cross of Calvary. इसलिए यीशु मसीह में इस प्रकार के प्यार को हम देखते हैं जो उस महान प्यार के चलते हुए उसने हमारे लिए एक बड़ा बलिदान को भी दिया। That's why it became a great aroma or fragrance. इसलिए वो प्रेम हमारे लिए एक बड़ा सुगंध होके ठहरा। Once again, let us read that verse, 1 Thessalonians chapter 4 and verse 9. That means Saint Paul says, the same love must be seen in your life and my life. इसलिए एक बार फिर हम उस वचन को पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 9 वचन, जहां संत पौलुस कहता है कि वही प्रेम हम में भी पाया जाना That चाहिए। is called the brotherly love. उस प्रेम का नाम है भाईचारे का प्रेम। But as touching brotherly love, ye need not that I write unto you. 1 Thessalonians chapter 4 verse 9. पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 9 वचन, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में ये आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास आकर कुछ लिखूं। For ye yourselves are taught of God to love one another. क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। That means God Himself taught you that you should love one another. उसका अर्थ ये है कि परमेश्वर ने ही आपको ये सिखाया है कि आपको एक दूसरे से प्यार करना है। Brother, sister, when we love each other, it shows that we are having the beauty of Jesus, which is His love. जब प्यारे परमेश्वर के प्यारे भाई और बहनों, जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं या प्रेम करते हैं तो वो ये दिखाता है कि यीशु मसीह का स्वभाव जो उसकी प्रेम की सुंदरता है हमारे अंदर है। Not only we should love among ourselves, our brethren,
brother and sister, but Jesus said, love your enemies too. ना केवल हमें अपने भाईचारे में और भाई बहनों को ही प्रेम करना है, यीशु ने यह भी कहा कि हमें अपने शत्रुओं को भी प्यार करना है। When we read Matthew chapter 5, जब हम मत्ती 5 अध्याय पढ़ते हैं, there we can see Jesus said, love your enemies. वहां हम ये देखते हैं कि यीशु ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो, Pray for them, those who persecute you. और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। That's why when we read verse 44, जब हम 44 वचन को पढ़ते हैं, there we see so many things which Jesus Christ told, which are connected with the love, or the person who is full of the love of Christ can do such things which are mentioned there. Let us read that verse, please. 5:44. और उन वचनों में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने कई ऐसी बातें कही जो प्रेम के साथ जुड़ी है और उस मनुष्य के साथ जुड़ी है जो परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है और दूसरों को प्यार करता है। Yes. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बस इतना ही है। 44. 44 वचन। Whole verse you read. And there it is written that do good to them that hate you and pray them which despitefully you and persecute you. Luke 6. 5. Matthew 5:44. मत्ती 5 अध्याय का 44 वचन। Matthew chapter 5 verse 44, Jesus said, but I say unto you, love your enemies. वहाँ मत्ती 5 अध्याय का 44 वचन में यीशु ये कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, Bless them that curse you. और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं। Bless them. उनको आशीष दो। उन्हें आशीष दो जो तुम्हें सताते हैं। Do good to them that hate you. और जो तुम्हें नफरत करते हैं उनके लिए भलाई करो। And pray for them which despitefully use you and persecute you. और जो तुम्हें गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं और तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। This is what Jesus said. यही यीशु ने कहा। Matthew chapter 5 and verse 44. मत्ती 5 अध्याय का 44 वचन। Love your enemies. अपने शत्रुओं से प्रेम करो। But in 1 Thessalonians chapter 4 and verse 9 what we read, लेकिन पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 9 वचन में हमने क्या पढ़ा? what we learn from God or what God has taught us, क्या हमने परमेश्वर से सीखा और नहीं तो परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया? that we must love one another. ताकि हम एक दूसरे से प्रेम करें। Yes, we should love one another and fulfill the beauty of Jesus, which is His love. हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। Reveal His beauty. हमें एक दूसरे से प्रेम करना है और इसके द्वारा हमें परमेश्वर की उस सुंदरता जो उसके प्रेम की सुंदरता उसे पूरा करना है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। We should also become perfect in the love of Jesus. और हमें यीशु के प्रेम में सिद्ध भी होना है। Jesus is perfect in love. यीशु मसीह प्रेम में सिद्ध है। And love demands sacrifice. और ये जो प्रेम है ये बलिदान को चाहता है। Without taking risk, without taking pain, we cannot become perfect in the love of Christ. हम इस प्रेम में कोई खतरा उठाने के बिना या त्याग के बिना या दर्द के बिना सिद्ध नहीं हो सकते। We have to pay the price. हमें उसके लिए दाम चुकाना है। What price Jesus paid? यीशु मसीह ने क्या दाम चुकाया? He paid the price of His blood. उसने अपने लहू का दाम चुकाया। Yes, He paid the price of His blood on the cross of Calvary in order to prove that how much I love you. उसने कलवरी क्रूस के ऊपर अपने लहू का दाम चुकाया और हमें यह साबित किया कि वो हमें कितना प्यार करता है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Let us love Jesus. इसलिए आइए यीशु को प्यार करें। Let us love His teaching. आइए उसके शिक्षा को हम प्यार करें। When we'll do like this, जब हम ऐसा करेंगे, it shows that we are loving His house, where we are going to, where we are very soon we are going to go there. वो ये दिखाता है कि हम उसके भवन को, उस भवन को प्यार करते हैं जो वो हमारे लिए तैयार करा हो। बहुत शीघ्र हम वहां जाएंगे। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। When we read, that's why when we read Psalm 26 दूसरा जब हम भजन संहिता 26 पढ़ते हैं and verse 8 when we read, जब उसका 8 वचन पढ़ते हैं, yes, 26:8, Psalm 26 verse 8. भजन संहिता 26 का 8 वचन। और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं, हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। See what David said here? यहाँ दाऊद क्या कहता है? 26 Psalm verse 8. भजन संहिता 26 का 8 वचन। He said, Lord, I have loved the habitation of thy house. हे यहोवा, मैं तेरे दाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। So in our spiritual life, how this verse is applicable?
अभी हमारे आत्मिक जीवन में ये वचन कैसे लागू होता है? How we can say that, oh Lord, we love thy habitation. हम कैसे ये कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे निवास स्थान से प्रेम रखता हूँ? When we love Jesus. जब हम यीशु को प्यार करेंगे। When we love Jesus, then only we can say, Lord, I love thy habitation. जब हम यीशु को प्यार करेंगे तभी हम ये कहने पाएंगे कि क्या हम परमेश्वर मैं तेरे भवन को भी प्यार करता हूँ। Bible says, Jesus, who is God, he dwells in Jerusalem and Zion. वचन ये कहता है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो सियोन और नए यरूशलेम में वास करता है। Hallelujah! Our Jesus, he has chosen Zion, and also the word of God says he dwells in Jerusalem. हमारे यीशु ने सियोन को चुन लिया और वो ये भी कि यरूशलेम में वास करता है। In Psalm 132, he has chosen Zion, and Psalm 135, it is written, he dwells in Jerusalem. 132 भजन संहिता में ये हम पढ़ते हैं कि उसने सियोन को चुन लिया और 135 भजन संहिता में हम देखते हैं कि वो यरूशलेम में भी वास करता है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। He dwells in Zion and Jerusalem together. वो सियोन में और यरूशलेम में भी रहता है। So when we say, Lord, I love thy habitation, जब हम ये कहेंगे कि परमेश्वर habitation of thy house, परमेश्वर मैं तेरे निवास स्थान को प्रेम करता हूँ, so what it shows, ये क्या दिखाता है? Jesus God who dwells in New Jerusalem and Zion, we love those places. यीशु हमारा परमेश्वर जो सियोन और नए यरूशलेम में रहते हैं, हम उन स्थानों को भी प्यार करते हैं। And the place, these two places Christ has gone to prepare for us, that means when we love Jesus, we are loving these two places and also getting ready to keeping the beauty of Jesus, which is his love. यीशु मसीह इन दो स्थानों को तैयार करने के लिए गए और जब हम यीशु को प्यार करते हैं तो उसका अर्थ ये है कि हम इन दो स्थानों को प्यार करते हैं जो यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करने के लिए गए हैं। What about our love towards our Jesus? यीशु मसीह के प्रेम के बारे में क्या कहा गया? You know, हमारा प्रभु के प्रति प्रेम कैसा है? हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम कैसा है? What Saint Paul said, संत पौलुस क्या कहते हैं? who shall separate us from the love of Christ? कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? Then he said, shall tribulation, कोई सताव, persecution, कोई क्लेश, distress, कोई तनाव, and hunger and thirst, भूख और प्यास, peril, कष्ट, nothing can separate us from the love of Christ, he says. कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, वो कहता है। Romans 8:35, it is written there. रोमियो 8 अध्याय का 35 वचन में ये लिखा So है। when he says shall tribulation, distress, persecution, etc., that means when such things comes in our lives, as a trial, our love towards Christ should not be minimized or diminished. जब वो ये कहता है कि क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, ये सारी चीजें जब हमें हमारे प्रेम के विरोध में आती है तो उसका like a trial. और एक परीक्षा के समान जब हमारे प्रेम के विरोध में आती है तो हमारा प्रेम मसीह के लिए कभी घटना नहीं चाहिए। Yes, well, like Saint Paul, we should say, who shall separate us from the love of और हम Christ? संत पौलुस के समान ये कहना चाहिए कि मसीह के प्रेम से हमें कौन जुदा कर That's सकता I है? told you, love demands sacrifice. इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो प्रेम है बलिदान को चाहता है। Number C, the second place, the beauty of our Jesus. अभी हम दूसरा विषय देखेंगे जहां हम परमेश्वर के प्रेम की सुंदरता को देखते हैं। Beauty of Jesus, यीशु की सुंदरता, or the character of Jesus, नहीं तो परमेश्वर यीशु का स्वभाव, is obedience, implicit obedience. ये जो है वो आज्ञाकारी को दिखाता है। Hebrews 5:8. इब्रानियों 5 अध्याय का 8 वचन। Hebrews chapter 5 verse 8. इब्रानियों 5 अध्याय का 8 वचन। There we read the beauty of our Jesus, which is obedience, वहाँ हम यीशु मसीह की सुंदरता जो उसकी आज्ञाकारी है देखते हैं, or his character. नहीं तो उसका स्वभाव। This should be seen in your life and my life too. ये आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी पाया जाना Read चाहिए। Hebrews 5:8. दया करके उस वचन को पढ़े, इब्रानियों 5 अध्याय का 8 वचन। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। Though he was son, yet he learned obedience by the thing which he suffered. यद्यपि वो पुत्र था तो उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। Glory be to प्रभु God. की महिमा हो। As love is connected with sacrifice, जैसा प्रेम एक बलिदान के साथ जुड़ा है, obedience is also connected with the suffering.
ये जो आज्ञाकारी है ये भी कष्टों के साथ जुड़ी है। Without suffering, we cannot become obedient unto God. कष्ट उठाने के बिना हम मसीह के लिए या प्रभु के लिए आज्ञाकारी नहीं बन सकते। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So that's why we must obey all the commandments of God. इसलिए हमें परमेश्वर के द्वारा दी गई सारी आज्ञाओं को मानना है। I will give you example how we can say that suffering is connected with obedience. मैं आपको इस बात का उदाहरण दूंगा जहां हम कहते हैं कि ये जो कष्ट है आज्ञाकारी के साथ जुड़ा हुआ है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। I will give you the example of Abraham. मैं आपको अब्राहम का उदाहरण दूंगा। When he was 100 years old, जब वो 100 साल का था, we see that time he got a promised son whose name was Isaac. तो हम देखते हैं कि उसने एक वायदे के पुत्र को प्राप्त किया जिसका नाम इसाक था। And when the Isaac grew, और जब ये इसाक बड़ा हुआ, God told Abraham, now you, thy son Isaac, whom thou lovest very much, offer him unto me. तब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तेरे पुत्र जिसे तू प्रेम रखता है इसलिए इसको मेरे लिए बलिदान चढ़ा। God saw the obedience of Abraham in the very beginning. शुरू में ही परमेश्वर ने अब्राहम की आज्ञाकारी को तो देख लिया था। This we can see in Genesis chapter 12. ये इस बात को हम लोग उत्पत्ति 12 अध्याय में देख सकते हैं। Genesis chapter 12 verses 1 to 4, when we read, we can see the obedience of Abraham there. जब हम उत्पत्ति 12 अध्याय के पहले 3 वचनों को पढ़ते हैं, वहां हम इस अब्राहम के आज्ञाकारी को देख सकते हैं। But again, God wanted to test his obedience. लेकिन फिर एक बार परमेश्वर उसकी आज्ञाकारी को जांचना चाहता था। Obedience is also connected with the love. ये जो आज्ञाकारी है ये भी प्रेम के साथ जुड़ी है। Though it is connected with the suffering, but in the same time, it is connected with the love also. यद्यपि ये आज्ञाकारी कष्टों के साथ जुड़ी है, ये प्रेम के साथ भी जुड़ी है। Now, Jesus say, God say, yes, I love the world. जैसा यीशु परमेश्वर I am loving the world. मैं संसार को प्रेम करता हूँ। And Jesus said, okay, Father, what you say me to do, I will obey. और यीशु ने कहा कि हाँ ठीक है पिता, जो आप मुझसे कहोगे मैं वही करूँगा। But to bring that obedience practically, he has to leave the heaven and come upon this earth and died on the cross. और उस आज्ञाकारी को प्रत्यक्ष रूप से दिखाने के लिए यीशु को स्वर्ग छोड़ के इस संसार में आना है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So in the same way, this obedience is connected with the suffering. इसलिए उसी प्रकार से ये जो आज्ञाकारी है कष्टों के साथ जुड़ी है। Abraham was more than 100 years. ये जो अब्राहम 100 साल से भी ज्यादा था। But God told him, take thy son and come to that one of the mountain called Moriah, the place, and I will show you the mountain there, and there you sacrifice your son for me. तब परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहा कि मैं जो स्थान तुम्हें दिखाऊंगा मोरिया पर्वत के ऊपर, तो उस स्थान में अपने पुत्र को लेके जाके मेरे लिए बलिदान चढ़ाना। He was an old person. वो बूढ़ा था। But we see, to prove that he is obedient to God and also loves God, और इस बात का प्रमाण देने के लिए कि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है और साथ ही साथ उसे प्रेम भी करता है, so he suffered in his body. वो अपने शरीर में कष्ट उठाए। He climbed upon the mountain. वो पहाड़ के ऊपर चढ़ा। How many mountains he climbed, we cannot say. हम ये नहीं कह सकते कि कितने पहाड़ उसने चढ़े। But it is written, after completing the 3-day journey, लेकिन ऐसा लिखा है कि 3 दिन की यात्रा को पूरा करने के बाद then he looked up the mountain. तब उसने उस पर्वत की ओर ऊपर देखा। After 3 days, 3 दिनों के बाद he told his servant, you remain there, I and my son, we will go and worship God and come back. उसने अपने दासों से ये कहा कि तुम इस स्थान में ठहरे रहो, मैं और मेरा पुत्र उस स्थान पे जाके जो परमेश्वर ने दिखाई है प्रभु की परमेश्वर की आराधना करके आएंगे। But still he has to walk some more and reach to that place where God wanted to sacrifice his son. और उसके बाद भी उसको उस स्थान पे चल के जाना है जो परमेश्वर ने उससे बलिदान करने के लिए दिखाई थी। What made him to endure suffering? इस सारे कष्टों को सहने के लिए उसे किस चीज ने विवश किया? Yes. What made him to endure such suffering even in his old days? अपने बुढ़ापे में भी इतनी उम्र के बावजूद भी इन सारे कष्टों को सहने के लिए किस बात ने उसे विवश किया? Can you tell it? क्या हम बता सकते हैं? Yes. Those who are seated behind, please, with your loud voice, if you know, tell it. जितने लोग पीछे बैठे हैं, अगर आप जानते हैं तो ऊंचे शब्द के साथ कहें। Yes.
to please his God. अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। Hallelujah! If we want to please our God, we will not bother about our suffering. We will not bother about what we are doing. It is a great thing we are doing for God. No. जब हम अपने प्रभु को प्रसन्न करना चाहेंगे तो कष्ट उठाना हमारे लिए बड़ी बात नहीं होगी। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Therefore, dear brothers and sisters, इसलिए प्यारे भाई और बहनों, Abraham pleased God. अब्राहम ने प्रभु को प्रसन्न किया। And what in his obedience, what he got from God? उसकी आज्ञाकारी में उसने परमेश्वर से क्या पाया? God said, I am the God of Abraham. उस परमेश्वर ये कहता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। I am the God of Abraham, God said. परमेश्वर ने ये कहा कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। Brother and sister, when we love God, when we are obedient to God, even we have to suffer, finally God will say, my son, my daughter, I am your God, fear not. प्यारे भाई और बहनों, जब परमेश्वर को हम प्रेम करेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे और उसके अनुसार जब हम कष्ट भी उठाएंगे, तो अंत में परमेश्वर ये कहेगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So obedience nature must be seen in your life and my life. मेरे जीवन में और आपके जीवन में ये आज्ञाकारी का स्वभाव पाया जाना चाहिए। Abraham was obedient. अब्राहम आज्ञाकार था। See, the another person to prove that he was obedient, how much he suffered, I will tell you his name also. मैं आपको एक और जन का नाम बताऊंगा जिसने इस आज्ञाकारी को साबित करने के लिए कष्ट उठाया। His name was Joseph. उसका नाम यूसुफ था। His father Jacob told him, go and see the welfare of your brethren. उसके पिता ने उससे कहा कि तू अपने भाइयों की जाके सुधि ले। When he went to the place where he was asked to go, he did not first see his brethren there. जब वो उस स्थान पे गया जहां उसे जाने के लिए कहा गया था, वहां उसने अपने भाइयों को नहीं पाया। And he found that his brethren they have gone further. और उसने ये पाया कि वहां उसके भाई वहां से दूर चले गए हैं। He could come back and tell, Father, the place where you have asked me to go, I went there, but I did not see. और ये वापस आके अपने पिता को ये कह सकता था कि पिता, मैं जिस स्थान में गया था वहां मैंने अपने भाइयों को नहीं पाया। यहाँ तूने मुझे भेजा था। जहां तुमने मुझे भेजा वहां मैंने अपने भाइयों को नहीं पाया। So this is the message I brought for you. यही संदेश मैं आपके लिए लाया हूं। But what father told him? लेकिन पिता ने उसे क्या कहा था? You go and see the welfare of your brethren, how they are, and bring the message to me. तुम अपने भाइयों के पास जाके उनकी सुधि लेके आके वो संदेश मेरे पास लाना। Without seeing, and if he'll come back and say, yes, I have obeyed your voice, it does not have any meaning. अगर उनको मुलाकात करने के बिना या देखने के बिना वापस आके ये संदेश देता कि जिस स्थान में तूने भेजा मैंने उनको नहीं पाया। But see, he suffered into the body, met his brethren, and finally he could not bring the message to his father. और देखते हैं कि अंत में उसने उस आज्ञाकार हो के अपने शरीर में कष्ट उठा के अपने भाइयों को खोजा, लेकिन संदेश देने के लिए वापस नहीं आया। They sold him, as we all know. तो भाइयों ने उसको बेच दिया करके हम जानते हैं। They sold him to Egypt. तो उन्होंने उसे मिस्र में बेच दिया। So obedience is connected with suffering. इसलिए ये जो आज्ञाकारी है कष्टों के साथ जुड़ी हुई है। So therefore, dear brothers and sisters, इसलिए प्यारे भाई और बहनों, how much we have to suffer in the response of obeying the doctrine of Christ, let us be firm in our decisions. इसलिए जितना अधिक हमें इन दिनों में कष्ट उठाना है, यीशु मसीह के उस उपदेश की आज्ञाकारी करते हुए हम कष्ट उठाएं। Then only we will get the reward. तभी हम प्रतिफल को पा सकते हैं। What reward we will get? क्या प्रतिफल हमें मिलेगा? Let's see that verse. आइए उस वचन को हम देखते हैं। Philippians chapter 2 verses 8 and 9. फिलिपियों 2 अध्याय का 8 और 9 वचन। Yes. और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। In verse 8 we see the obedience of Jesus. 2:8 वचन में हम यीशु मसीह की आज्ञाकारी को देखते हैं। And here also we see his obedience is connected with the suffering, even the death of the cross. यहाँ हम यीशु के आज्ञाकारी को कष्टों के साथ जुड़ा हुआ देखते हैं, अर्थात क्रूस की मृत्यु के साथ। He was obedient unto death, even the death of the cross. Chapter 2 verse 8, the last portion, it is written there, Philippians. फिलिपियों 2 अध्याय का 8 वचन में उसके आखिरी भाग में ये लिखा है कि उसने यहाँ तक आज्ञाकारी की कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। And in verse 9, 9 वचन में, wherefore God also hath highly exalted him.
इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया and given him a name which is above every name. और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। God the Father highly exalted Jesus Christ not because he was the Son of God, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए नहीं श्रेष्ठ किया कि वो उसका पुत्र था, but when he saw his qualities, when he saw humility and obedience, then only God the Father exalted him. लेकिन जब पिता ने यीशु मसीह के अंदर उसकी आज्ञाकारी को, उसके गुणों को और उसके कष्टों को देखा, उसके बाद यीशु को उसने श्रेष्ठ किया। Therefore, dear brother and sister, counting the years in this faith life or in this ministry, it will not help us to be exalted by our Heavenly Father, but we must reveal the qualities of Jesus, His beauties. Then only we will be exalted by Jesus as He was exalted by His Heavenly Father. इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अपने विश्वास जीवन में बिताए हुए सालों को या अपनी सेवा में बताए हुए सालों को गिन के हमें प्रभु श्रेष्ठ नहीं करेगा, परंतु उन बातों को देख के जो मसीह के स्वभाव, जो कि आज्ञाकारी, कष्ट उठाना, इन बातों को देख के मसीह प्रभु हमें श्रेष्ठ करेगा। So that's why we should be very, very curious and we should be very, very careful to reveal the beauty of Jesus and imbibe the beauty of Jesus in us, which is His character. इसलिए यीशु मसीह के सुंदरता और उन स्वभावों को पाने के लिए हम अति सावधान होना चाहिए और उसको हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए भी हम सावधान होना चाहिए। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Third beauty of Jesus, what we see. तीसरा, यीशु की तीसरी सुंदरता के बारे में हम देखते Let हैं। us now see the third beauty of our beloved Jesus, हमारे प्यारे यीशु मसीह की तीसरी सुंदरता को हम देखते हैं, or His character. नहीं तो उसका स्वभाव। He was meek. वो दीन था, Yes, He was meek. वो नम्र था। Let's read Matthew chapter 11 and verse 29. मत्ती 11 अध्याय का 29 वचन में हम देखते हैं। Matthew 11:29. मत्ती 11 अध्याय का 29 वचन। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Matthew chapter 11 and verse 29, we see another beauty of our Jesus, and He wanted to teach us. मत्ती 11 अध्याय का 29 वचन में हम यीशु मसीह की एक और सुंदरता के बारे में पढ़ते हैं जो वो हमें सिखाना चाहते हैं। What Jesus said? यीशु ने क्या कहा? Take my yoke upon you मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो and learn of me, और मुझसे सीखो, for I am meek and lowly in heart. क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। Jesus said, learn of me. यीशु ने कहा मुझसे सीखो। That means learn my beauty, उसका अर्थ है कि मेरी सुंदरता को सीखो, learn my character. मेरे स्वभाव को सीखो। What is my character? मेरा स्वभाव क्या है? I am meek and lowly. मैं नम्र और दीन हूँ। As I am meek and lowly, जैसे मैं नम्र और दीन हूँ, you should also imbibe the same character. और उन्हीं स्वभावों को तुम भी अपने जीवन में प्राप्त करो। Therefore, take my yoke upon you. इसलिए वो ये कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। Yoke speaks about the disciplined life. ये जो जुआ है एक अनुशासन के जीवन को दिखाता है। We should remain in the discipline of the apostles of fellowship and doctrines. हमें प्रेरितों के उपदेश में या उस संगति के अनुशासन में बने रहना है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। That's why Jesus said, take my yoke upon you. इसलिए यीशु ये कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। This responsibility Christ has given to His consecrated servants of God, to whom Christ has kept in the church. इसलिए परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी अपने प्रतिष्ठित सेवकों को, जिनको उन्होंने अपने भवन में रखा है, दी है। So we must be led by their discipline. इसलिए हमें उनके अनुशासन के द्वारा चलना We चाहिए should be led by their teaching and the counseling. और उनकी शिक्षा और उनकी सलाह के अनुसार हमें चलना चाहिए। So when we will listen them and obey and live accordingly, it shows that we are revealing the beauty of Jesus Christ, which is meekness and lowliness. जब हम उनकी सुनेंगे और उसको अपने मानेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, तब हम ये प्रकट करेंगे कि यीशु मसीह की नम्रता और दीनता हमारे अंदर है। So meek mean humble, gentle and humble. नम्र का अर्थ है हलीम और Gentle and humble. Okay. कोमल। नम्र का अर्थ है हलीम और कोमल। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So the beauty of Jesus, or the character of Jesus, is that He is meek. इसलिए यीशु मसीह की जो सुंदरता या उसका स्वभाव ये है कि वो नम्र है। That His life is compared with a lamb. Lamb speaks about the meekness.
इसलिए यीशु मसीह का जीवन एक मेमने के साथ तुलना किया गया है, क्योंकि ये मेमना जो है वो नम्र होता है। Jesus Christ's life compared with the Lamb of God. He's called the Lamb of God. इसलिए यीशु मसीह की तुलना मसीह परमेश्वर के मेमने के साथ की गई है। It is told Jesus the Lamb of God, Lamb of God. इसलिए ये कहा गया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। Lamb is meant for sacrifice. ये जो मेमना है ये बलिदान के लिए है। And what the Lamb of God who Jesus did, what he did? ये जो परमेश्वर का मेमना यीशु है उसने क्या किया? Do you want to know that? क्या आप जानना चाहते हैं? Let's read that verse. आइए उस वचन को हम पढ़ें। John 1:29. यूहन्ना 1:29 John chapter 1 verse 29. यूहन्ना 1:29 Yes. दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। Hallelujah. See here John the Baptist said, यहाँ देखिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहते हैं? Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। Glory be to प्रभु God. की महिमा हो। Jesus Christ, He became great sacrifice, being the Lamb of God on the cross of Calvary यीशु for मसीह the जो salvation of the entire world. यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, मनुष्य जाति की मानव जाति के उद्धार के लिए एक बड़ा बलिदान हो गया। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So, brother and sister, प्यारे भाई और बहनों, when we say Jesus is meek, जब हम ये देखते हैं कि यीशु नम्र है, He is like a lamb. वो एक मेमने के समान है। And this meekness character of Jesus must be seen in my life and your life और ये also. जो नम्रता का स्वभाव, जो यीशु का स्वभाव है, हमारे जीवन में भी दिखाई देना चाहिए। And what it shows, ये क्या दिखाता है? we see when we read about Moses, जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, God testified about the meekness of Moses. यहाँ मूसा परमेश्वर मूसा की नम्रता के बारे में गवाही देता है। When we read Number chapter 12 and verse 3, जब हम गिनती 12:3 पढ़ते हैं, Number chapter 12 and verse 3, जब हम गिनती 12:3 पढ़ते हैं, there God said, like my servant Moses, there is no meek among the men upon this earth. परमेश्वर वहाँ 12:3 में ये कहते हैं कि मेरे Like Moses. दास मूसा के समान इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी नम्र नहीं। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So we see Moses, who he was the person who was sent to Egypt to deliver the people of God. हम देखते हैं कि मूसा वो कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर के द्वारा मिस्र में इसलिए भेजा गया ताकि वो प्रभु के लोगों को छुड़ाए। So brother and sister, when we say that we must imbibe the character of Jesus, the beauty of Jesus, which is meekness, it will help us to bring people or bring the people out from their captivity or slavery of sin, Satan, and all even the sicknesses. इसलिए जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर की नम्रता हमारे जीवन में हमें लागू करनी है या अपनानी है, तो वो जो नम्रता हम अपनाएंगे, वो नम्रता दूसरे लोगों को जो बंधुआई के बीच में, पाप में, श्राप में और दुनियादारी में फंसे हैं, उन लोगों को छुड़ाने के लिए मदद करेगी। And the meek people will be exalted with Jesus. और यीशु मसीह के साथ ये जो नम्र या दीन लोग हैं ऊंचे किए जाएंगे। So there should not be seen any type of iota of pride in our lives. हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का घमंड और अहंकार नहीं दिखाई देना चाहिए। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। We should be meek like Jesus. हमें यीशु के समान नम्र होना है। So when we say meek like Jesus, जब हम कहते हैं कि यीशु के समान नम्र होना, it leads us to another deeper truth. और ये हमें एक और गहरी सच्चाई में ले जाता है। What it could be? वो क्या हो सकती है? Read book of Acts chapter 8 and verse 33. जब हम प्रेरितों के काम 8:33 पढ़ते हैं, Acts chapter 8 verse 33 we can see there. प्रेरितों के काम 8:33। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठाया जाता है। Yes, in Acts chapter 8 and verse 33 we see what Jesus has to face the price for that, showing his humiliation or his meekness. यहाँ प्रेरितों 8:33 में हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी नम्रता को साबित करने के लिए किस प्रकार का दाम चुकाया। Yes, it is written in his humiliation his judgment was taken away. यहाँ ये लिखा है कि उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। Brother and sister, when you will be humble,
प्यारे भाई और बहनों, जब हम नम्र होंगे, where you will be meek. जब हम दीन होंगे, Suppose in your office, मान लीजिए कि आपके दफ्तर में you are eligible for the promotion, but your junior is promoted. आप एक ऊंचे पदवी पाने के लिए योग्य होंगे, लेकिन आपसे जो छोटे हैं वो उस पदवी को पा लेते हैं। And also your promotion is due and you are expecting long back, but in place of you, your junior is promoted for that. And that moment, what will be our reaction? Since we are the children of God. लंबे समय से आपकी एक उन्नति तो होनी है, लेकिन वो उन्नति आपको नहीं मिलती। आपसे जो छोटा जो काम करता है वो उस उन्नति को प्राप्त कर लेता है। तो हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? So that we should take the same way in our life also, as we have read about Jesus, in his humiliation, his judgment was taken away. इसलिए जो वचन हमने अभी पढ़ा यीशु मसीह के बारे में, उसी वचन को हमारे जीवन में भी हमें लेना होगा कि उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं हो पाया। So when your juniors are promoted, but your promotion is due, you are also waiting for that, expecting for that, but you are not given that moment. What should be our reaction? We should not murmur against God. We should not murmur against our boss and from where this promotion will come, but we should take everything, all things works together good for them, those who love him, so that God's purpose should be fulfilled in my life. जब छोटे लोग हमसे उन्नत किए जाते हैं या पहले हमसे पहले जो उन्नति पाते हैं, और हम जो उस उन्नति की अपेक्षा करते हैं या लंबे समय से इंतजार करते हैं और उस उन्नति को नहीं पाते, तब हम इस स्वभाव को पाना चाहिए और हम अपने परमेश्वर के विरोध में या अपने अधिकारियों के विरोध में बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए, वरन इस वचन को जहां लिखा कि उसकी दीनता में उसका न्याय ले लिया गया, उस वचन को हमारे जीवन में देखते हुए हम परमेश्वर के लिए परमेश्वर के सामने एक शुक्रगुजारी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये लिखा है कि परमेश्वर को प्रेम करने वालों के लिए सब कुछ भलाई में होकर बदल जाता है। Romans 8:29. रोमियो 8:29 वचन, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है 28. और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। Romans chapter 8 and verse 28. रोमियो 8:28 वचन, And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। So meekness is the character of Jesus, beauty of Jesus. इसलिए जो नम्रता है ये यीशु की सुंदरता है। So Jesus was meek. यीशु नम्र है। And same meekness must be seen in your life and my life, being his spiritual body. इसलिए हम जो परमेश्वर के आत्मिक शरीर या देह है, हमारे जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में ये परमेश्वर की दीनता या नम्रता दिखाई देनी चाहिए। Number 4. चौथा विषय, In the fourth place we see the beauty of Jesus, or the character of Jesus is जब हम चौथे विषय में देखते हैं जहां परमेश्वर की सुंदरता या उसके स्वभाव क्या है, his holiness. उसकी पवित्रता, His holiness. उसकी पवित्रता। That's why he is expecting the same holiness from us. इसलिए वो उसी पवित्रता को हमसे अपेक्षा करता है। 1 Peter chapter 1 verse 16. जब हम पहला पत्रस 1:16 वचन पढ़ते हैं, 1 Peter chapter 1 verse 16, please read. पहला पत्रस 1:16 वचन पढ़े कृपया। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। See here, God said, Jesus said, be holy because I am holy, it is written. देखिए यीशु मसीह इस रीति से कहते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। And Leviticus chapter 19 verse 2 also written, you can read by yourself. Leviticus 19, Leviticus. और लेव्यवस्था 19:2 वचन में भी यही बात लिखी है, आप अपने आप से पढ़ सकते हैं। So about our God's holiness, it is written, He is glorious in holiness. हमारे ही परमेश्वर की पवित्रता के विषय में यह लिखा है कि वो अपनी पवित्रता में महिमामय है। He is glorious in holiness. Book of Exodus chapter 15 and verse 11 it is written.
निर्गमन 15 अध्याय का 11 वचन में परमेश्वर की पवित्रता के बारे में ये लिखा है कि वो अपनी पवित्रता में शोभायमान है। O Lord, who's like you, who's glorious in holiness. हे परमेश्वर, तेरे समान तेरे तुल्य कौन है जो अपनी पवित्रता में महिमामय है? Our Jesus is glorious in holiness. हमारा यीशु पवित्रता में शोभायमान है। Holy life makes glorious. हमारा पवित्र जीवन हमें महिमामय बनाता है। Holy life makes us heavenly people. हमारी पवित्र जीवन हमें स्वर्गीय बनाता है। Holy life is a joyful life. पवित्र जीवन एक आनंद से भरा जीवन है। Glory be to प्रभु God. की महिमा हो। Our Jesus is holy. हमारा यीशु पवित्र है। That is his beauty. वो उसकी सुंदरता है। It is his character. वो उसका स्वभाव है। And why we should be holy? और क्यों हम पवित्र होना चाहिए? One reason, because we are going to become like Jesus who is holy. एक कारण ये है कि हम यीशु के समान बनने वाले हैं जो पवित्र है। And the second thing is why we should be holy. और दूसरा विषय ये है कि हमें पवित्र क्यों होना है? As we read in Hebrew 12:14, जैसा हमने इब्रानियों 12 अध्याय के 14 वचन में पढ़ते हैं, without holiness no man can see the Lord. पवित्रता के बिना कोई प्रभु को नहीं देख सकता। Why we should be holy? क्यों हमें पवित्र होना है? 1 John chapter 3 and verse 3 it is written to obtain the hope. पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 3 वचन में ये लिखा है कि उस आशा को पाने के लिए, Yes, those are having this hope, they purify themselves as he is pure. जिनके अंदर ये आशा पाई जाती है वो अपने आप को वैसे ही पवित्र करते हैं जैसे वो पवित्र है। To see Jesus we should be holy. यीशु को देखने के लिए हमें पवित्र होना चाहिए। To please Jesus we should be holy. यीशु को प्रसन्न करने के लिए हमें पवित्र होना है। And also brother and sister, that if we want to be get our hope, still we should be holy. और प्यारे भाई और बहनों, हमारी आशा को पाने के लिए भी हमें पवित्र होना है। Therefore we should love holiness. इसलिए हमें पवित्रता को प्यार करना चाहिए। God loves holiness. यीशु परमेश्वर पवित्रता से प्रेम रखता है। How much we love holiness, to that extent our holiness become glorious. जितना अधिक हम इस पवित्रता को प्रेम करेंगे उतना अधिक हमारी पवित्रता शोभायमान या महिमा से We will बढ़ेगी। become also glorious in holiness. We will also become glorious in holiness. तब हम भी पवित्रता में शोभायमान होंगे। Number 5. पांचवा विषय, In the 5th place we see the beauty of our Jesus or his character. यीशु मसीह का सुंदरता या उसका स्वभाव जो हम पांचवा विषय देखते हैं, What is that? वो क्या है? He is merciful. वो दया करने वाला दयालु है। Jesus is merciful. यीशु दयालु है। Merciful his character. ये जो दया है उसका स्वभाव है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Psalm 103 verse 8. भजन संहिता 103 का 8 वचन। Psalm 103 verse 8. भजन संहिता 103 का 8 वचन। Saturday night also we read about that. शनिवार रात को भी हमने इसके बारे में पढ़ा। Please read. यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Psalm 103 and verse 8, we read the beauty of our Jesus, the character of our Jesus. The Lord is merciful and gracious. भजन संहिता 103 का 8 वचन में हम यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में, हम यीशु मसीह की सुंदरता के बारे में पढ़ते हैं कि वो दयालु और अनुग्रहकारी है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। If you show mercy to others, we can receive mercy from God. जब हम दूसरों को दया दिखाएंगे तब हम परमेश्वर से दया को पाएंगे। That's why Jesus said, what you want from others, that they should do for you, you should also do the same. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो दूसरों से चाहते कि वो तुम्हारे प्रति करे, तुम उनके प्रति वही करो। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Matthew chapter 5, मत्ती 5 अध्याय read verse 7. 7 वचन पढ़े। Matthew 5:7. मत्ती 5 अध्याय का 7 वचन। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। That's why I told you, if we'll show mercy to others, we will also get the mercy from God. इसलिए मैंने आपको ये कहा कि अगर हम दूसरों को दया दिखाएंगे तभी हम परमेश्वर से दया को पाएंगे। Matthew chapter 5 and verse 7, Jesus said, मत्ती 5 अध्याय का 7 वचन में यीशु ने कहा, Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. धन्य है वो जो दयावंत है क्योंकि वो दया को पाएंगे। When we show mercy to others, we are not get the mercy in turn, but we will be called blessed people.
जब हम दूसरों को दया दिखाएंगे तो हो सकता है कि हम उनसे दया ना पाए, लेकिन वचन के अनुसार हम धन्य कहलाए जाएंगे। God, we will get the mercy also from God, and the same time God will say you are blessed. हम परमेश्वर से दया को भी पाएंगे और साथ ही साथ परमेश्वर ये भी कहेंगे कि तू धन्य है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। In Habakkuk chapter 3 हबक्कूक 3 अध्याय and verse 2 when we read, उसका 2 वचन जब हम पढ़ते हैं, there the prophet says, वहां भविष्यवक्ता ये कहता है, in wrath remember mercy. In wrath remember mercy. तेरे क्रोध में अपनी दया को स्मरण कर। Read that verse. उस वचन को पढ़े। 3:2. Habakkuk chapter 3 verse 2. हबक्कूक 3 अध्याय का 2 वचन। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। That mean in wrath remember mercy. उसका अर्थ यह है कि क्रोध करते हुए भी अपनी दया को स्मरण कर। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Our God will not retain anger forever against us. हमारा परमेश्वर हमारे विरोध में हमेशा के लिए क्रोध को नहीं रखता। Because in Micah chapter 7 and verse 18 it is written, 7:18. इसलिए माइका की किताब 7 अध्याय का 18 वचन में ये लिखा है, He delighteth in mercy. वो दया से प्रसन्न होता है। Read that verse. तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। Micah chapter 7 and verse 18 it is written, the last portion of verse 18, He delighteth in mercy. मीका 7 अध्याय का 18 वचन के उस आखिरी भाग में लिखा है कि वो करुणा से या दया से प्रसन्न होता है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So when a person is punished for death, जब एक मनुष्य मृत्यु अपने पाप के लिए सजा पाता है, or suppose he asks that you will be hanged for your sin. मान लीजिए उसे ये कहा जाता है कि तू अपने पाप के लिए फांसी पर चढ़ाया जाएगा, So he will apply for the mercy. तब वो अपनी उस दया के लिए एक पत्र लिखेगा। He will apply for mercy. वो दया के लिए लिखेगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। And to whom he will apply, that means he has power to show mercy or quit him from this punishment. और जिसको वो इस दया की याचिका दर्ज करता है, उसका अर्थ यह है कि उस इंसान के पास ये अधिकार है कि वो इसे मृत्यु का दंड दे या इसे छोड़े। Glory be to God. He can show the mercy towards that person. और वही व्यक्ति इस इंसान के इनको दया भी दिखा सकता है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now how we can get the mercy? अभी हम इस दया को कैसे पा सकते हैं? When we read book of Proverbs chapter 28 verse 13, जब हम नीति वचन 28 अध्याय का 13 वचन पढ़ते हैं, book of Proverbs chapter 28 and verse 13, जब हम नीति वचन 28 अध्याय का 13 वचन पढ़ते हैं, read that verse. उस वचन को पढ़ें। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। One who covereth his sin shall not prosper. Proverbs chapter 28 and verse 13. नीति वचन 28 अध्याय का 13 वचन, जो अपने पाप को छिपा रखता है उसका काम कभी सफल नहीं होगा। But one who confess his sin and forsake, he shall have the mercy of God. परंतु जो उस अपने पापों को मान लेता और उसे छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। So if we want to get the mercy from God or become merciful to others, अगर हमें परमेश्वर को परमेश्वर से दया पानी है तो हमें दूसरों के प्रति दयावान होना पड़ेगा। So what we should do to get the mercy from God? We should admit our sin before God and forsake them. Again we should not repeat. इसलिए परमेश्वर से दया पाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे सारे पापों को, अधर्मों को प्रभु के सामने मान के छोड़ देना होगा। Our God is so merciful. हमारा परमेश्वर दया से परिपूर्ण है। Brothers and sisters, we should also show mercy to others, those who have done ill against us, persecuted us, harmed us. प्यारे भाई और बहनों, जिन लोगों ने हमारे विरोध में कुछ हानि पहुंचाई है या हमें सताया है या हमारे विरोध में कुछ है, ऐसे लोगों के ऊपर हमें दया दिखानी होगी। And such people will get the great mercy from God. ऐसे लोग ही परमेश्वर से उस बड़ी दया को पा सकते हैं। Joseph had that nature. यूसुफ के पास ये स्वभाव था। Joseph forgave his brethren by whom he was ill treated. यूसुफ He showed mercy to them.
यूसुफ ने अपने भाइयों के ऊपर दया दिखाया जिनके द्वारा वो सताया गया था। He said, I am your brother Joseph. I have forgiven you. Come near to me. उसने ये कहा कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ और मैंने तुम्हें क्षमा किया है, मेरे निकट आओ, Come near to me. मेरे पास आओ। Don't be grieved into your heart. अपने हृदय में आप दुख मत करो। Don't think that you have sent me here, but no, God only sent me here before you to save your lives. तुम ये ना सोचो कि तुमने मुझे इस स्थान पे भेजा है, परंतु परमेश्वर ने मुझे इस स्थान पे तुम्हारे सामने भेजा है। The people who receive the mercy from God जिन लोगों ने परमेश्वर से दया को पाई है are those who want to prove themselves that they are merciful, और जो ये साबित करना चाहते हैं कि वो दयावान है, even when they will be ill-treated by others. जब वो यद्यपि वो दूसरों के द्वारा सताए या बुरा व्यवहार किए जाते हैं। You did good to others, but in turn you got evil from them. आपने तो लोगों को भलाई किया, कुछ अच्छा काम किया, उसके बदले भी उन्होंने आपके साथ बुराई की। But that moment also, when you show mercy to them, और उस समय में भी जब आप उनके ऊपर दया को दिखाओगे not taking revenge, और बदला ना लेते हुए, that shows that you having the beauty of Jesus, you are having the character of Jesus, which is the mercy. वो ये दिखाता है कि आपके अंदर यीशु की सुंदरता और यीशु का स्वभाव जो उसकी दया है पाई जाती है। Jesus is merciful. यीशु दयालु है। We should be merciful as we have read Matthew 5:7. जिस प्रकार हमने मत्ती 5 अध्याय का 7 वचन में पढ़ा, हमें भी दयालु या दयावान बनना है। We should not having the spirit of retaliation, हमारे पास पलटा लेने की या बदला लेने की आत्मा नहीं होनी but चाहिए। we should forgive our transgressors too. इसलिए हमारे अपराधियों को हमें क्षमा करना चाहिए। That shows we are merciful. वो ये दिखाता है कि हम दयालु हैं। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Number 6. छठा विषय, In the 6th place, we see the beauty of the character of our Lord Jesus Christ is इस छठे विषय में हम प्रभु की सुंदरता या उसके स्वभाव क्या है करके हम देखते हैं। that we see he is a compassionate. वो दया से परिपूर्ण है, Compassionate. वो करुणामय है। Yes, when we read Psalm 78, जब हम 78 भजन संहिता पढ़ते हैं, Psalm 78 and verse 38 when we read, जब हम 78 भजन संहिता उसका 38 वचन पढ़ते हैं, 78, 38. 78 भजन संहिता उसका 38 वचन, परंतु वह जो दयालु है वह अधर्म को डांपता और नाश नहीं करता, वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Psalm 78 and verse 33, भजन संहिता 38, भजन संहिता 78 का 38 वचन, there we read about the beauty of our God, वहाँ हम हमारे परमेश्वर की सुंदरता के बारे में पढ़ते हैं, beauty of our Jesus. हमारे यीशु की सुंदरता के बारे में। What is that? वो क्या है? It is written, but he being full of compassion. वो जो करुणा से भरा है, Karuna. He being full of compassion. वो जो करुणा से भरा है, This compassion is connected with forgiveness. ये जो करुणा, जो परमेश्वर की करुणा है, ये क्षमा के साथ या माफी के साथ जुड़ी है। The person who's having the compassionate heart, जिनके पास ये करुणा से भरा हुआ हृदय है, they only can forgive others. वो ही केवल दूसरों को माफ कर सकते हैं। This is what we have read about our Jesus here. यही हमने अपने यीशु मसीह के बारे में यहाँ पढ़ा। But he being full of compassion forgave their iniquities and destroyed them not. परंतु वो जो करुणा से भरा है, वो उनके अधर्मों को डांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। That's why Psalm 103 and verse 10 it is written, if God would mark our iniquities, who can stand before him? इसलिए भजन संहिता 103 का 10 वचन में ये लिखा कि अगर परमेश्वर हमारे अपराधों का हिसाब ले तो कौन उसके सामने खड़े रह सकता है। He is not marking our sin or putting our sin in our account, but because he is a compassionate God, he forgives us. क्योंकि वो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है और हमें क्षमा करता है, इसलिए वो हमारे अपराधों का हिसाब नहीं लेता। He hath not dealt with us, Psalm 103 verse 10, he has not dealt with us after our sin, nor rewarded us according to our iniquities. भजन संहिता 103 का 10 वचन, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमसे बदला लिया।
Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। When Jesus saw the multitude, जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, Bible says he moved with compassion. वचन ये कहता है कि वो करुणा से भर गया। With that compassion, what did he और do? उस करुणा से उसने क्या किया? He healed all the sick people. उसने सारे बीमारों को चंगा किया। Matthew chapter 9 verse 36. मत्ती 9 अध्याय का 36 वचन। Matthew 9:36. मत्ती 9 अध्याय का 36 वचन। जब उसने भीड़ को देखा तो उन लोगों पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Matthew chapter 9 verse 36, what we read, मत्ती 9 अध्याय का 36 वचन में हमने क्या पढ़ा? if you read about Jesus moved with compassion. जो हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि उसने भीड़ को देख के तरस खाया। But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them. जब उसने बड़ी भीड़ को देखा तो उसने उस भीड़ के ऊपर तरस खाया। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। And in verse 35, और 35 वचन में हम it देखते is हैं written, healing every sickness and every disease among the people. लोगों के बीच में जो भी बीमार थे और जो भी दुर्बल थे उन्हें चंगा किया, Because our God is a God of compassion. क्योंकि हमारा परमेश्वर करुणा से बड़ा परमेश्वर है। When he will see our poverty, जब when हम- he will see our sicknesses, when he will see our burdens, worries and cares, he will show compassion towards us. जब वो हमारी गरीबी को देखता है, जब वो हमारी बीमारी कमजोरियों को देखता है, जब वो हमारी परेशानियों को और चिंताओं को देखता है, तो हमारे प्रति वो तरस खाता है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। But to get the compassion from God, परमेश्वर के उस तरस को पाने के लिए या परमेश्वर से उस हाँ। करुणा को पाने के लिए to get the compassion from God, brother and sister, what we should do? हमें परमेश्वर की करुणा को पाने के लिए हमें क्या करना है? We should do the same thing which prodigal son did. जैसे उड़ाऊ पुत्र ने किया, हमें भी वैसा करना As चाहिए। the prodigal son did, in order to get the compassion from his father, we too do the same thing. जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से उस दया को या तरस को पाने के लिए जो किया, हमारे जीवन में भी हमें भी ऐसा ही करना होगा। Read Luke 15:20. लूका 15 अध्याय का 20 वचन पढ़ें। Luke chapter 15 verse 20, how this prodigal son, though he lost everything what he received from his father, yet he got the compassion. जहाँ लूका 15 अध्याय का 10 वचन में हम देखते हैं, 20 वचन में हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से दया को पाने के लिए क्या किया करके हम देखते हैं। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अब वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Luke chapter 15 and verse 20, लूका 15 अध्याय का 20 वचन what we read here, हम यहाँ क्या पढ़ते हैं? we read about the prodigal son and the reaction of his father. हम यहाँ उड़ाऊ पुत्र के बारे में और उसके पिता की प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion. तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अब वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। What it showed that he had compassion? ये उसने तरस खाया, ये क्या दिखाता है? Compassion mean he forgave him. तरस खाना मतलब उसने उसको क्षमा किया। He forgave all his ill treatment. उसने सारे उसके बुरे व्यवहार को क्षमा या माफ कर दिया। He forgave his pride. उसने उसके घमंड को माफ किया। He forgave his arrogance. उसने उसके अहंकार को माफ किया। He forgave his disobedience. उसने उसके अनाज्ञाकारी को माफ किया। And that's why it is written, he fell on his neck and kissed him, loved him. इसलिए ये लिखा है कि उसे गले लगाकर उसे बहुत चूमा या उसे प्यार किया। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Brothers, sisters, the beauty of our Jesus is he is full of compassion. प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी यीशु की सुंदरता ये है कि वो करुणा से और दया से, करुणा से परिपूर्ण है। He is a compassionate God. वो करुणा निदान परमेश्वर है। Anytime we can get the compassion from God, provided with this condition that we must return unto him and ask pardon. कभी भी हम परमेश्वर से इस करुणा को पा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि हम मन फिरा के उसके पास या उसके निकट आए। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So come to the last point. आइए आखिरी विषय में हम जाएंगे। The seventh type of beauty of our Jesus, ये सातवां जो परमेश्वर की सुंदरता का विषय है, that is our Jesus is faithful.
हमारा यीशु वफादार या विश्वास Yeah, योग्य है। the beauty of our Jesus is his faithfulness. यीशु मसीह की जो सुंदरता है वो उसकी विश्वास योग्यता है। 1 Thessalonians chapter 5 and verse 24 when we read. पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 24 वचन जब हम पढ़ते हैं, Read that verse. तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। No. Faithful is he who has called you and he will also do it. तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वफादार है और ऐसा ही करेगा। Jesus has called us. यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, Jesus has saved us. यीशु ने हमें उद्धार किया है And it is written he is faithful. और ये लिखा है कि वो वफादार है। He is faithful in order to take us into his kingdom. और वो इसलिए वफादार है कि हमें उसके राज्य में ले जाने के लिए। The Bible says Psalm 36 and verse 5. भजन संहिता 36 का 5 वचन में ये लिखा है, It is written his faithfulness reaches to the clouds. उसकी जो विश्वास योग्यता है वो बादलों बादलों पर पहुंचती है। Psalm 36 verse 5. भजन संहिता 36 का 5 वचन, Yes. हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। So there it is told the सच्चाई, but actually it is told faithfulness. वहाँ सच्चाई लिखा है, लेकिन जो सही रीति से वहाँ उसकी विश्वास योग्यता के बारे में लिखा है। His faithfulness reaches to the clouds. उसकी विश्वास योग्यता आकाश मंडल तक पहुंचती है। What this cloud speaks about? ये आकाश मंडल या बादल क्या दिखाते हैं? The word of God says we will caught up together with them those who are dead in Christ. When Christ will come, they will rise first, and we who will remain alive, we will caught up together with them and meet the Lord in the clouds. वचन ये कहता है कि जो मसीह में मर गए हैं या मसीह में सो गए हैं, जब यीशु आएगा तब पहले वो जिलाए जाएंगे और हम जो जीवित है उनके साथ बदल के यीशु मसीह के साथ बादलों में चले जाएंगे। Take your Bible into your hand. 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 and 17. अपने धर्मशास्त्र को अपने हाथों में ले। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 16 और 17 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। In verse 16, the last portion, and verse 17 it is written, 16 वचन के आखिरी भाग में और 17 वचन में ऐसा लिखा है, the dead in Christ shall rise first. जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। Verse 17, 17 वचन, then we which are alive and remain shall be caught up together with them तब in the clouds to meet the Lord in the air. तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। What it shows in the clouds mean it speaks about the rapture. ये जो मेघ या बादल है ये क्या दिखाते हैं? ये आगमन या आमद के बारे में कहते हैं। Yes, when Jesus will appear in the mid sky to take his bride from this earth, जब यीशु मसीह मध्य आकाश में अपनी दुल्हन को लेने के लिए प्रकट होंगे, those who are already dead in Christ, they will come with Jesus. जो लोग यीशु के साथ पहले मर चुके हैं वो यीशु के साथ आएंगे। And suppose we are alive and remain, we are not dead, we are still living upon this earth, we will caught up together with them to meet the Lord in the clouds in the air. मान लीजिए कि हम अगर उस समय तक जीवित रहे और हम जो बचे रहेंगे, हम यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे और रूपांतर हो जाएंगे। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। As our Jesus is faithful, जैसा हमारा यीशु वफादार है, we should be faithful. हम भी वफादार होना चाहिए। That's why in Revelation 2:10 it is written, be faithful unto death, then you will have the crown of life. इसलिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 10 वचन में इस रीति से लिखा है कि मरने तक तू वफादार रहे तब जीवन का मुकुट पाएगा। And the eyes of the Lord will be upon the faithful of the land. Psalm 101 and verse 6. भजन संहिता 101 का 6 वचन कहता है कि उस देश के विश्वास योग्य लोगों के ऊपर परमेश्वर की आंखें या दृष्टि है। Yes, brother, sister, if we will be faithful with our Jesus to the last breath of our life, Jesus' eyes will be upon us.
to prove himself that he is faithful to take us to the cloud into the rapture. हाँ परमेश्वर के प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हमारे जीवन के आखिरी श्वास तक हम यीशु के साथ वफादार रहेंगे तो वो अपनी वफादारी में ये साबित करेगा कि वो हमें उस अपने बादलों में उसके साथ उठा लिए जाए। Yes, let's all stand up, please. आइए कृपया करके खड़े हो जाएं। Let's all stand up, please. आइए सब लोग खड़े हो जाएं। Now we are going to conclude this convention आइए अब हम along with this meeting. इस सभा के साथ हम इस सम्मेलन को समाप्त करने जा रहे हैं। So whatever we have heard in these days from the word of God, इन दिनों में परमेश्वर के वचन से हमने जो कुछ सुना है through the servants of God, सेवकों के द्वारा, let us not only be the hearers of the word of God, but let us have practiced those things in our lives. हम केवल परमेश्वर के वचन सुनने वाले नहीं, परंतु उस वचन को अपने जीवन के अभ्यास में करने वाले या लाने वाले बने। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Then only we can be seen in the rapture, or we can see the beauty of the Lord in his temple in New Jerusalem and Zion, as King David said. तभी राजा दाऊद के कहने के अनुसार हम परमेश्वर के आगमन में दिखाई दे सकते हैं और उसके भवन में उसकी सुंदरता को निहार सकते हैं। We can see in New Jerusalem and Zion. तभी हम अपने आप को सिय्योन और नए यरूशलेम में देख सकते हैं। Let us fully surrender. आइए संपूर्ण रीति से समर्पण करें, Fully surrender to the word of God. परमेश्वर के वचन के लिए अर्पण करें। Yes, sing a chorus. स्वर्गीय यरूशलेम स्वदेशी मेरा, पिता और मेमने का निवास वहाँ। स्वर्गीय यरूशलेम स्वदेशी मेरा, पिता और मेमने का निवास वहाँ। अर्पित बना लेकर वफादार और सच्चा, धर्म का मुकुट पाओगे। अंतित बना लेकर वफादार और सच्चा, धर्म का मुकुट पाओगे। स्वर्गीय यरूशलेम स्वदेशी मेरा, पिता और मेमने का निवास वहाँ। स्वर्गीय यरूशलेम स्वदेशी मेरा, पिता और मेमने का निवास वहाँ। अंतित बना लेकर वफादार और सच्चा, धर्म का मुकुट पाऊंगा। अंतित बना लेकर वफादार और सच्चा, धर्म का मुकुट पाऊंगे। यीशु साथ है मेरी आत्मिक दौड़ में, अकेला हो नहीं कभी मैं। यीशु साथ है मेरी आत्मिक दौड़ में, अकेला हो नहीं कभी मैं। मेरा भुलाने वाला है सच्चा, निशानी तक पहुंचाएगा। मेरा भुलाने वाला है सच्चा, निशानी तक वो पहुंचाएगा। यीशु साथ है मेरी आत्मिक दौड़ में, अकेला हो नहीं कभी मैं। यीशु साथ है मेरी आत्मिक दौड़ में, अकेला हो नहीं कभी मैं। मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशानी तक वो पहुंचाएगा। मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशानी तक वो पहुंचाएगा। मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशानी तक वो पहुंचाएगा।